آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آخر اسرائیل اور فلسطین کا وواد کیوں نہیں حل ہو پا رہا ہے، اس کے پیچھے کا کیا کچھ کارن ہے اور اس کا حل کیا ہے آسان شبدوں میں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو کچھ بلٹ پوائنٹس بتا دیتے ہیں جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں مسئلے کا حل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جیروشلم اسٹیٹس، پیلسٹائنین ریفیوجی ایشو، جو سیٹلمنٹ، ویسٹ بینک وال، واٹر کرائسس، ہاکس اینڈ ڈوز، سیکیورٹی ایشوز۔ یہ 7 بڑے بڑے کارن ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں پیس ٹاک میں دقت آتی ہے۔ آئیے ایک ایک کو وستار سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیروشلم اسٹیٹس کی۔ جی ہاں، جیروشلم اسٹیٹس ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسرائیل اور پیلسٹینینز دونوں کے لیے بہت ہی مقدس کا حامل ہے۔ ویسے بنیادی طور پر جیروشلم 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ویسٹ جیروشلم میں زیادہ تر یہودی آبادی رہتی ہے۔ ایسٹ جیروشلم میں یہودی اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جن سنکھیا زیادہ ہے، اور ایسٹ جیروشلم میں ہی وہ تمام ہولیسٹ سائٹ ہیں، خاص طور سے جوز اور مسلمانوں کے، جس کو مسلمان حرم الشریف کہتے ہیں۔ اس پورے کمپاؤنڈ میں مسجد الاقصی، ڈوم آف دی راک اور ویسٹرن وال یعنی دیوار گریہ شامل ہے، جس کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اوور آل کہیں تو یہ جو پورا ٹیمپل ماؤنٹ کا یا حرم الشریف کا علاقہ ہے، اور یہیں سے قریب 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کرسچنز کا ایک بہت ہی مقدس مقام جس کو ہولی سیپلکر کہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایسا مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر سولی دی گئی تھی، اور وہ یہیں پر ریسریکٹ بھی ہوں گے، یعنی دوبارہ سے مبعوث ہوں گے۔ تو 1-1.5 کلومیٹر کا جو دائرہ ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بہت پوتر مقام رکھتا ہے، اور خاص طور سے یہودیوں اور مسلمانوں کا جو جھگڑا ہے وہ پورے حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے علاقے کو لے کر کے ہے، جس کی بنیاد پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکثر گتھم گتھا رہتے ہیں اور خبریں آتی رہتی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو علاقہ ہے ایسٹ جیروشلم میں، وہ مقدس مقام ہے مسلمانوں کے لیے اس طور پر کہ یہ قبلہ اول، اور یہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ پورا مقام اور علاقہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس کا حامل ہے، تو مسلمان اپنا دعویٰ اس پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہیں دوسری طرف یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھی، اور ہیکل سلیمانی کی جو آخری نشانی جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، دیواری گریہ یعنی جہاں پر یہودی جا کر کے روتے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پورے ٹیمپل ماؤنٹ یا کہہ سکتے ہیں حرم الشریف کے پورے پہاڑی کے علاقے کو مسمار کر کے 3rd ٹیمپل بنائیں گے، اور پھر یہیں سے ہم اپنی حکومت چلائیں گے۔ یہ دراصل یہودیوں کی ایک منصوبہ بندی ہے۔ تو کل ملا کے یہ کہیں کہ یہ جیروشلم اسٹیٹس کو لے کر کے کوئی بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے اسرائیل اس کو اپنے قبضے میں لیتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اس پورے علاقے کو کور کرتی ہے، حالانکہ وہ اسلامی سائٹ ہے، اس کے باوجود اس میں جانے کے لیے آپ کو اسرائیلی سیکیورٹی سے پاس ہو کر کے جانا پڑے گا۔ بغیر اسرائیلی سیکیورٹی کو آپ کراس کیے نہیں جا سکتے ہیں۔ کل ملا کے کہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ ہماری دارالحکومت ہو، یعنی راجدھانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں امریکہ کے تتکالین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سہایتا سے اسرائیل نے امریکہ کی ایمبیسی کو یہاں شفٹ کر دیا تل ابیب سے۔ حالانکہ امریکہ کے علاوہ اب تک دنیا کی کوئی بھی ایمبیسی یہاں پر نہیں ہے، اور پوری دنیا کی ایمبیسیز تل ابیب میں ہیں، اور تل ابیب ہی کو دارالحکومت اسرائیل کا مانتی ہیں، جیروشلم کو نہیں مانتی ہیں سوائے امریکہ کے۔ اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو جیروشلم کے اس پورے مقدس علاقے کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ ان کی آخری نشانی ہیکل سلیمانی کی یادگار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی پیس ٹاک ہوتی ہے تو جیروشلم کے اسٹیٹس پر آ کر کے رک جاتی ہے، اور معاملہ جوں کا توں رہ جاتا ہے۔ یہ پہلا ہرڈل ہے۔ اب آئیے دوسرے ہرڈل کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پیلسٹائنین ریفیوجی ایشو۔ انفیکٹ پیلسٹائنین ریفیوجی ایشو کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ جب 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تھا 14 مئی کو، اس کے دوسرے دن یعنی 15 مئی کو اسرائیل پر 4 عرب دیشوں نے حملہ کر دیا تھا۔ حالانکہ اسرائیل نے ان چاروں دیشوں کو ہرا دیا تھا، اور اسی جنگ کے دوران پیلسٹائنینز بڑی سنکھیا میں قریب 7 لاکھ پیلسٹائنینز الگ الگ علاقوں میں چلے گئے تھے، جیسے کہ سیریا ہو گیا، لیبنان ہو گیا، جارڈن ہو گیا، ان تمام علاقوں میں چلے گئے تھے، اور وہ 7 لاکھ اس وقت ان کی سنکھیا 50 لاکھ ہو چکی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پیلسٹینین ریفیوجی کا مدعا ایک ایسا بڑا ہرڈل اور بڑا ایک طریقے سے رکاوٹ ہے جس کو کسی بھی صورت میں اسرائیل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دراصل اگر اب اسرائیل کا ڈیموگرافی دیکھیں گے تو اسرائیل کی ڈیموگرافی کچھ یوں ہے کہ اسرائیل میں مکمل طور سے قریب 90 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس 90 لاکھ میں
20 लाख मुसलमान रहते हैं, 70 लाख यहूदी रहते हैं, और अगर गज़ा को ले लें तो गज़ा में करीब करीब 20 से 22 लाख मुसलमान रहते हैं। ओवरऑल उस पूरे इलाके में करीब करीब 40-42 लाख मुसलमान रहते हैं और 70 लाख यहूदी रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर 50 लाख और मुसलमान यहाँ आकर के शिफ्ट हो जाएंगे तो इजराइल की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, यानी लगभग 90 लाख मुसलमान हो जाएंगे इस पूरे खित्ते में और 70 लाख यहूदी बचेंगे। ऐसी सूरत में यहूदी जो कि अभी मेजॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। यही वजह है कि जब भी कोई पीस टॉक का मामला सामने आता है फ़ौरन पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी का इशू सामने आ जाता है और इजराइल इसको कतई रिजेक्ट कर देता है। तो ये दो बड़ी हर्डल्स थी जो इजराइल और पैलेस्टीन के मसले को हल करने में बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरे नंबर का मामला यह है ज्यू सेटलमेंट। ज्यू सेटलमेंट का मतलब ये है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ पर लगातार यहूदी अपनी बस्तियाँ बसा रहे हैं मुसलमानों के इलाकों में, यहाँ तक कि मुसलमानों के इलाकों को उन्होंने छलनी कर रखा है। पहले जहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमान हुआ करते थे अब वहाँ पर बड़ी संख्या में यहूदी आकर के बस रहे हैं और लगातार वो बसते चले जा रहे हैं। यानी एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब वेस्ट बैंक का वो इलाका मुसलमानों को तंग कर दिया जाएगा और मुसलमान वहाँ से मजबूर हो जाएंगे हिजरत करने पर या कहीं और दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा और सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसको लेकर के मुसलमानों को बहुत बड़ा ख़तरा है और ज्यू सेटलर लगातार वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स कर रहे हैं और ये हुकूमत की पुष्टपनाही में हो रहा है। जैसा कि आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं, इस दो तस्वीर में आप अगर बाएं तरफ देखेंगे तो ये जो बहुत ही खूबसूरत पक्के मकानात बने हैं ये हुकूमत की बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म निगरानी में बनाए गए हैं और यहाँ पर हुकूमत की स्कीमों के ज़रिए से लोगों को सेटल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दाएं तरफ की तस्वीर है वो दरअसल अभी डेवलप्ड हो रहा है इलाका और उन इलाकों में धीरे धीरे यहूदियों को बसाने का इरादा है और ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब भी कोई पीस टॉक होती है तो ज्यू सेटलमेंट का मामला सामने आता है और फ़ौरन ये मुतालबा किया जाता है कि यहूदियों को चाहिए, इजराइल को चाहिए कि वो ज्यू सेटलमेंट को रोक दे और इजराइल इस चीज़ को रोकने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि जब हम अपने इलाके को एक्सपेंड कर लेंगे तब हमारे लिए अपना वजूद बचाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, या यूँ कहिए हमारी दादागिरी और आसानी के साथ चलेगी। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो दाहिने तरफ जो तस्वीर है वो बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनी हैं, फेंसिंग लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर बाएं तरफ की जो तस्वीर देखेंगे ये कुछ मुसलमानों के घर हैं। यहाँ पर 10, 15, 20 यहूदी आएंगे और वहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से पूरी ऐसी ही कॉलोनी बनाएंगे, फेंसिंग लगाएंगे, बाड़ लगाएंगे और मुसलमानों के जो इक्का दुक्का घर होंगे उनको मार के यहाँ से भगा देंगे और रफ्ता रफ्ता ये पूरा इलाका बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे आप दाहिने तरफ की तस्वीर देख रहे हैं। तो ये पूरा खौफनाक मंसूबा है ज्यू सेटलर्स का और ये इजराइल बाज़ाब्ता तौर पर पुष्टपनाही कर रहा है इसकी। यही वजह है कि ज्यूज़ के हौसले बुलंद हैं और मुसलमानों को बहुत सख्त दिक्कत का सामना है और जब भी पीस टॉक की बात आती है तो ज्यू सेटलमेंट एक बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है। यही वजह है कि पीस टॉक नहीं हो पाती है। चौथी बड़ी हर्डल्स की बात करें तो वेस्ट बैंक में वॉल बना के रखा है, यानी आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो दीवार आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, दरअसल ये इजराइल द्वारा खड़ी गई एक दीवार है और ये दीवार ऐसी है जो मुसलमानों के इलाके को बिल्कुल सेपरेट करती है यहूदियों के इलाके से। उनका बेसिकली कंसर्न ये है कि इस तरीके से मुसलमानों की आबादी को हम एक अलग थलग घेर देंगे, आइसोलेट कर देंगे और जगह जगह हम गेट लगा देंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉय कर देंगे और उसके बाद हम फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी आसानी के साथ आवाजाही नहीं हो पाएगी। ये उनका मंसूबा है और इसी मंसूबे के तहत वेस्ट बैंक वॉल को उन्होंने खड़ा किया है। दोस्तों ये एक ऐसा मंसूबा है जो इससे पहले आजमाया जा चुका है बैतुल लहम पर, और बैतुल लहम ये वही इलाका है जिसको आप हेब्रून भी कहते हैं, उसको अल खलील इलाका भी कहते हैं। कुल मिला के ये कहें कि जेरूशलम से करीब करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही इलाका है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो जो बैतुल लहम का या अल खलील या हेब्रून का जो इलाका है वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहूदियों ने लिया और उसको देखा कि वो सफल एक्सपेरिमेंट रहा। वहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई और उस दीवार के उस तरफ पूरा हेब्रून या अल खलील इलाका आबाद है और इस तरफ जेरूशलम आबाद है। यहूदियों को ये ख़तरा है कि पैलेस्टाइनियन मुस्लिम कहीं उनके ऊपर हमला आवर ना हो जाएं, इसलिए उनको हर तरफ से आइसोलेट कर दो और फिर आराम के साथ अपनी ज़िंदगी जियो और वक्त गुजारो और पैलेस्टीनियंस के ख़तरे को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दो। तो कुल मिला के ये कहें कि इतना ख़तरनाक मंसूबा है। थोड़ा सा और आप दिलचस्प जानकारी आपको इस सिलसिले में दे दें कि बैतुल लहम में रहने वाले जो भी पैलेस्टाइनियंस हैं, अगर उनको जेरूशलम आना होता है
تو उसको काइंड ऑफ वीज़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। वीज़ा तो नहीं कहेंगे टेक्निकली, लेकिन वो वीज़ा टाइप का कुछ होता है जो कि आप इजाज़तनामा कह सकते हैं। यानी बग़ैर इजाज़तनामे के वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट से एंट्री नहीं कर सकते हैं और जेरूशलम में नहीं आ सकते हैं। जिस तरीके से वीज़े वगैरह में ये होता है, एक मुद्दत फ़िक्स होती है कि इतनी मुद्दत के लिए यहाँ रुक सकते हैं, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, उसमें तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। इसी तरीके से बैतुल लहम के किसी भी आदमी को अगर जेरूशलम आना है, तो वो इज़राइली सिक्योरिटी से वो परमिशन लेगा, उसके बाद में जाकर के वो जेरूशलम में एंट्री करेगा और जहाँ-जहाँ उसमें मेंशन होगा वहीं-वहीं जा सकता है। जितने दिनों के लिए रुकने की मियाद होगी उतने ही दिन रुक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता है। तो आप ये समझिए कि पैलेस्टाइनियंस अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में वो एक तरीके से सेकंड क्लास सिटीज़न्स के तौर पर ट्रीट किए जा रहे हैं। तो चूँकि उन्होंने बैतुल लहम में ये सक्सेसफुल पूरा मंसूबा तैयार कर लिया था और वो दीवार उनकी काम कर रही है और उस दीवार के उस पार उन्होंने फ़लस्तीनियों को कैद कर रखा है, एक तरीके से उन्होंने उसको आइसोलेट कर रखा है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, और वेस्ट बैंक में वेस्ट बैंक वॉल बना करके वेस्ट बैंक के मुसलमानों को आइसोलेट कर देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद में बिल्कुल उसी टाइप का इजाज़तनामा या रुख़सतनामा जो भी उसी टाइप का अप्लाई कर देंगे। यानी वेस्ट बैंक के मुसलमान अगर जेरूशलम जाना चाहें तो उनके लिए भी वही तमाम शर्तें लागू हो जाएंगी। एक और जानकारी आपको दे दें कि वो जो दीवार इजराइल ने बनाई है बैतुल लहम की, उस दीवार को फ़लस्तीनियों ने और दूसरे आर्टिस्ट ने उसको रंग दिया है और उस दीवार पर इतनी कलाकृतियाँ बिखेरी हैं कि उन कलाकृतियों में हर एक कलाकृति में एक पूरी कहानी छुपी है। अगर आप उस पूरी दीवार की तस्वीर को देखेंगे, और एक लामुतनाही सिलसिला है, तो वो एक-एक तस्वीर एक-एक कहानी कहती है। दुनिया के बड़े-बड़े आर्टिस्ट ने वहाँ जाकर के अपनी कला को बिखेरा है। तो ये तस्वीर देखने की चीज़ है और वाक़ई में समझने की चीज़ है कि इज़राइल और फ़लस्तीन का विवाद एक बिल्कुल अनोखे टाइप का विवाद है। तो ये दरअसल बहुत बड़ी रुकावट है वेस्ट बैंक वॉल, और ये इज़राइल जो भी अपना मंसूबा और प्लान करता है उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो यही वजह है कि जब भी टेबल पर बैठने की बातचीत आती है तो इस तरह के हर्डल सामने आते हैं, ख़ास तौर से इज़राइल इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी तरीके से एक पाँचवीं बड़ी रुकावट ये है वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस आप सब जानते हैं कि इज़राइल का जो इलाका है वो डेज़र्टेड है, वो पत्थरों का इलाका है, वहाँ पर पानी की किल्लत है और शदीद किल्लत है। इज़राइल ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर के पानी को और दूसरे पानियों को उसने फ़िल्टर करके पीने के लायक पानी बनाया है और अपने शहरियों को मुहैया कराने की कोशिश की है और बड़े पैमाने पर लोग उस पानी को पी रहे हैं। तो फ़लस्तीनियों के लिए और इज़राइलियों के लिए, दोनों के लिए वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो फ़लस्तीनियों के हक़ का पानी है वो भी इज़राइल ले लेता है। अब ऐसी सूरत में जब भी पीस टॉक की बात आती है तो फ़ौरन वाटर क्राइसिस का मामला सामने आ जाता है और इज़राइल किसी भी सूरत में वाटर क्राइसिस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो फ़लस्तीनियों के हक़ का जो पानी यूज़ कर रहा है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी रुकावट है दोनों के दरमियान पीस टॉक में। छठा पीस टॉक का एक जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ये है कि हॉक्स एंड डव्स। हॉक का मतलब होता है बाज और डव का मतलब होता है फाख्ता। बाज बहुत ही एग्रेसिव पक्षी होता है और डव जो होता है फाख्ता बहुत ही नम्र होता है, बहुत मासूम सा परिंदा होता है। तो हर समाज में दो टाइप के लोग होते हैं। इसी तरीके से इज़राइल में भी दो टाइप के लोग हैं और इसी तरीके से पैलेस्टाइनियंस भी दो तरीके से हैं। जहाँ तक इज़राइल में दो तरीके के लोगों की बात करें और हॉक की बात करें, उसमें नेतन्याहू का चेहरा सबसे उभर कर सामने आता है और ये किसी भी सूरत में फ़लस्तीन के लोगों को टॉलरेट करने के मूड में नहीं होते हैं और वो किसी भी तरह की बातचीत में भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं नेतन्याहू। वहीं दूसरी तरफ जो बेनी गैंट्स हैं, जो अपोजिशन हैं, जिनकी ब्लू एंड वाइट पार्टी है, वो थोड़ा सा नर्म रवैया अख्तियार करते हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत हो, पीस टॉक हो, लेकिन किसी भी सूरत में नेतन्याहू बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं किसी भी फ़लस्तीनी को इस तौर पर कि वो इज़राइल के सामने आँख से आँख मिलाकर बात करे। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पैलेस्टाइनियंस में भी दो ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जिसको आप हमास कहते हैं और दूसरा अल-फतह कहते हैं। हमास के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई हो रही है इज़राइल की, वो हमास के साथ ही लड़ाई हो रही है और हमास दरअसल उसका एक पॉलिटिकल विंग भी है और उसका एक मिलिटेंट विंग भी है। जो सियासी इकाई है वो सियासत में हिस्सा लेती है और जो लड़ाई वाली इकाई है वो लड़ाई में हिस्सा लेती है, जिसको कताइब क़िसाम या अल-क़िसाम ब्रिगेड कहते हैं। तो दरअसल वो लोग किसी भी सूरत में इज़राइल के एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये फ़लस्तीनियों में हॉक्स का किरदार अदा करते हैं, वहीं फ़लस्तीनियों में डव्स का किरदार अदा करने वाले अल-फतह हैं, जिसके जो सरबराह हैं महमूद अब्बास। दरअसल ये वेस्ट बैंक बेस इनकी सरकार है, रामल्ला में इनका सदर मकाम है। कुल मिला के ये कहें, जब दोनों तरफ से
हॉक्स एंड डॉव्स हैं, तो ऐसी सूरत में जब भी पीस टॉक की बात आती है तो सबसे पहले दोनों को एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, और एक तरफ अगर हो गए एक साइड के तो दूसरे साइड के दोनों को एक साथ लाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि पीस टॉक के टेबल पर ही ये लोग नहीं आ पाते हैं। तो जब पीस टॉक के टेबल पर ही नहीं आ पाएंगे तो फिर आगे का प्रोसेस कैसे जारी होगा? जाहिर है कि ये बहुत बड़ा हर्डल है पीस टॉक में। इसके अलावा जो आखिरी बड़ी रुकावट है वो सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू का मतलब ये होता है कि चाहे वो पैलेस्टाइनियंस हों या फिर इजरायलीज़ हों, दोनों एक दूसरे के लिए ख़तरा महसूस करते हैं और एक दूसरे के लिए ख़तरा भी पैदा करते हैं। इजरायलीज़ पैलेस्टाइनियंस को एक आँख नहीं भाते हैं, पैलेस्टाइनियंस इजरायलीज़ को एक आँख नहीं भाते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जो वेस्ट बैंक के इलाके में हैं वो ऐसे पैलेस्टाइनियंस हैं जो यहूदियों के यहाँ काम करते हैं। बहुत सारे यहूदियों के पैलेस्टाइनियंस के यहाँ आना जाना है, बाज़ाब्ता घरों तक आना जाना है, दोस्ती यारी है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद जब कोई इस तरह के टेंस हालात होते हैं तो फिर दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर भी सामने आती है जब एक ही गली में गुजरते वक्त ना इजरायली पैलेस्टीनी को देखता है, ना फ़लस्तीनी इजरायली को देखता है, यानी एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते हैं। ओवरऑल ये कहें कि एक दूसरे के लिए दोनों एक सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर हैं, और ये ट्रस्ट डिफिसिट की बात है। एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं रह गया है। जाहिर सी बात है कि अगर एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं बचा है तो आप चाहे जितनी अमन की बातें कर लें, कुछ दिनों के बाद वो फिर कॉमन ग्राउंड पर आ जाएंगे और फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। ओवरऑल ये कहें कि ये जो 6-7 इश्यूज़ हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से पीस टॉक नहीं हो पाता है, लोग टेबल पर नहीं बैठ पाते हैं आपस में, ये बहुत बड़े बड़े हर्डल्स हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन और बड़े बड़े हर्डल्स हैं। अब मसले का हल क्या है? मसले का हल देखिए बहुत ही सिंपल और सादा और आसान है, और वो मसले का हल ये है टू नेशन थ्योरी, यानी दो देश, इजराइल फ़लस्तीन। दोनों देशों का जब तक आज़ादाना मामला नहीं होगा तब तक मसले का हल नहीं हो सकता, वरना लड़ाइयाँ होती रहेंगी और इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे। 2008 से लेकर के 2023 चल रहा है, इस बीच में कई सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ख़ास तौर से हमास और इजरायली फोर्सेस के दरमियान। एक लड़ाई 2012 में हुई, एक लड़ाई 2014 में हुई, एक लड़ाई 2021 में हुई, करीब 15 दिनों तक जारी रही, और अब बीते 7 अक्टूबर से 2023 की लड़ाई है, और हमास और इजराइल एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। और अब तक की ये जो लड़ाई है ये अब तक की सबसे भयानक लड़ाई कही जाती है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, और इजराइल ने जितना बम गिरा दिया है गज़ा के इलाके में, अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो एक आइटम बम के मुतरादिफ हो सकता है। कुल मिला के ये कहें कि ये तमाम तरह की रुकावटें हैं, और इन रुकावटों का यही हल है कि टू नेशन थ्योरी हो और बैठ के बातचीत करें। लेकिन इतने तमाम तरह के हर्डल्स हैं, इसलिए बैठ के बातचीत करना शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा है, और इस मसले का हल शायद कि सदियां गुजर जाएं, मुमकिन ना हो पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मसले का हल क्या होता है, कैसे होता है, जबकि दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे इस कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी के बारे में और इस पूरे मसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय बनती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।